Welcome class. Now we're going to start our subject geography with the 7th chapter. The name of this chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. Before I start this chapter, I would like to tell you about this chapter name. Okay, so chapter name is your Human Environment. Human environment is basically human interact with the environment and make the use of the natural into his own resource. So for human environment, what are the things which comes into is settlement, transport and communication. I don't think I used to tell you what is settlement, transport and communication because it is very easy to know, but we will further read about settlement, their types, their classifications, transport, their types and their classification, and the means of communication, as we have already studied in the last chapter in civics, that is understanding media is also a way of communication. So human environment, so environment, human is surrounded by some resources which he or she use for their own survive or for their own lifestyle. So in this chapter we will continue studying this is human beings depend entirely on nature for food, clothes, and shelter. This is all we know, that we survive on three things, that is food, clothes, and shelter. And to grow food, building homes, and develop better means of transport and communication, in this way they modify the environment where they lived. So the environment change into a human environment when human modify its nature. This is known as your human environment. Now we coming to the first topic, as it is stated that settlement. Okay, settlement. Settlement are the place where people build their home. Early human beings lived on tree and in caves. When they started to grow crop, it became necessary to have a permanent settlement. So settlement, जहाँ पे लोग अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पे रह जाते हैं और आसपास की चीज़ें उनको उनकी सर्वाइवल के लिए अच्छी होती है, तो वो वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं. अगर आप प्रीवियस हिस्ट्रीज में देखेंगे तो आपको लगेगा बच्चे कि पीपल यूज टू लिव in the forested area or caves. These are not a permanent as whole, but through the time passes, when permanent homes settled, so people started their agricultural activities and the herding activities. Nowadays uh, in this era, you also see some civilization near the river valleys, which is because of the fertile river and the availability of water, which help the people to settle their house or a home and with a civilized manner. Can you name some civilizations which is developed near the river valleys? Yes, of course, you have already learned this in your class 6 chapter. And आई वुड लाइक टू से दैट आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा कि कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी जो रिवर्स के साइड पे डेवलप्ड हुई. सो दिस इज अबाउट अ सेटलमेंट डेफिनेशन. नाउ कमिंग टू types. Okay, how many types of settlement we have? So settlement can be categorized into a permanent and temporary. settlement जो होता है, आप दो तरीके में उसको कैटेगराइज कर सकते हो. एक है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी. परमानेंट सेटलमेंट वो होता है जो आप लॉन्ग पीरियड के लिए ऑक्यूपाई करते हैं, और टेम्पररी वो जहां आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हो, उसको आप कहते हैं टेम्पररी सेटलमेंट. और फॉर एग्जाम्पल, डीप फॉरेस्ट एंड अ हॉट कोल्ड डेजर्ट माउंटेन ड्वेलर आर अ टेम्पररी सेटलमेंट. क्योंकि यहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत ठंडी पड़ने पे वो माउंटेन से नीचे आकर के तराई एरिया पे रहते हैं, और जैसे ही मौसम थोड़ा सही हो जाता है, यानी कि गर्मी के मौसम आने लगते हैं, तो ये लोग वापस ही अपने पुराने सेटलमेंट में चले जाते हैं. Now coming to the permanent settlement. Permanent settlement is basically the settlement which we have done it. We have built buildings, we have
settled concrete buildings, which is known as a permanent settlement. All right, can you see the beautiful picture of human settlement here? All right, now we coming to the next page. Okay, here is small story about a birthday party of Mary, and she is waiting for her friend to come, Gurpreet, but the arrival is so late that she is very tired because of the pollution and because of the vehicle pollution. Okay, in city area, as you compare with the village, pollution ज़्यादा होता है और population भी ज़्यादा होता है. Can anybody tell me the reason? Yes, because people from the rural area, they comes to city area for their job, for their education and other lifestyle. Due to this, they increase the population of the city area. Then here the girl Mary says, if they come here, where will we stay? So उनके फादर कहते हैं कि अगर वो लोग जब आते हैं तो दे स्टार्टेड, जगह कम हो जाती है तो दे स्टार्टेड मेकिंग अ स्मॉल हाउसेस विच विल बी नो एज अ, जैसे कि झोपड़ियाँ बना लेते हैं, थैच्ड होम्स बना लेते हैं साइड रोड के किनारे. तो ये क्या है, ये इन लोग का परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई एरिया अब ज़्यादा खाली नहीं है जहाँ पे वो अपना खुद का घर बना सकें, बिकॉज दे डोंट हैव सच मनी ऑल्सो, एंड द एरिया where they develop their thesis is very unhygienic. Okay, there is no supply of electricity and other conditions. Okay, so in village the quality of air is very good, but the quality of life is not good. Okay, by this sentence I mean that कि अगर आप गांव जाएं बच्चे तो आप देखोगे कि वहाँ की जो हवा है वो बहुत ही शुद्ध है, ठंडी है, अच्छी है. लेकिन अगर सिटी एरिया में देखें तो यहाँ की जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है. आप सांस नहीं ले सकते हैं क्योंकि इतना पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ अ पीपल. लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ व्हीकल, सो देयरफॉर द पोल्यूशन इज मोर. But in your rural area, the drawback is because of the lifestyle is not so qualitative. अब qualitative का मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ एडवांस हॉस्पिटल या कुछ बेसिक हॉस्पिटल्स भी नहीं होते हैं, जिसके लिए लोगों को अपने रूरल एरिया को छोड़ के सिटी एरिया में आना पड़ता है. सो नाउ द सेटलमेंट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन अ टू डिफरेंट पिक्चर, दैट इज योर रूरल एरिया and your urban settlement. In the village are rural settlement where people are engaged in the activity like agriculture, fishing, forest, crafts, etc. Okay, so rural settlement के जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चरल एरिया में क्राफ्ट वर्क में रहते हैं, और इनके घर जो होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट या तो स्कैटर्ड होते हैं. कॉम्पैक्ट का कहने का मतलब है कि अगर सपोज यहाँ पे कोई खेत है, यहाँ पे कोई खेत है, ठीक है, आसपास ही उन लोग का खेत होता है, बीच में अगर जगह खाली है तो सभी लोग अपना यहीं घर बना लेते हैं, तो इसको कॉम्पैक्ट कहेंगे. स्कैटर हाउसेस कहाँ मिलते हैं? स्कैटर आपको माउंटेनियस एरिया में मिलते हैं जहाँ पे लोग अपना दूर दूर घर बनाते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो प्लेन एरिया वेयर दे सेटल और बिल्ड देयर हाउसेज. तो रूरल एरिया कुछ ऐसे मिलते हैं. कॉम्पैक्ट आपके प्लेन एरिया, दैट इज़ योर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ योर मैप, यहाँ पे आपको प्लेन एरिया मिल जाएगा. अगर मैं बात करूँ स्कैटर्ड की तो आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड चले जाएं तो वहाँ आपको थोड़ा सा स्कैटर्ड मिलेगा बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ योर माउंटेन्स एंड हिल्स. अगर हम बात करें कि रूरल एरिया में जो हाउसेस होते हैं वो कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. येस, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बने रहते हैं. चलिए अब उसकी बात की जाए. सो अगर जहाँ पे बारिश बहुत होती है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है. एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर का मतलब ये होता है बच्चे कि वहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा हो जाएगा. जब पानी का जमाव ज़्यादा हो जाएगा तो आप वहाँ घर आपका हमेशा डूब जाएगा. तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बेम्बू स्टिक के ऊपर अपना घर बनाते हैं, जिससे कि पानी जब भी आए तो उनका घर जो है वो डिस्ट्रॉय
ना हो और स्मॉल जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो भी अपने घर पे एंटर ना करें। तो ये बात हुई आपके रेनी एरियाज में कैसा सेटलमेंट होता है रूरल सेटलमेंट का। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कौन से स्टेट में आपको ये मिलेगा, तो आपको आसाम, गुवाहाटी, द सेवन सिस्टर्स इज बेसिकली एग्जाम्पल फॉर दिस। अगर जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और घर जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और जो छत होता है वो थैशेस के यानी कि झाड़ियों से उसको ढका जाता है प्रॉपर तरीके से, तो ये डेजर्ट एरिया जहाँ पे बहुत गर्मी होती है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपके रूम को ठंडा करता है। इस तरीके का आपको सेटलमेंट दिखता है। अगर हम बात करें दो चीज़ों की जिसको हम देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है आपका दो वर्ड, दैट इज टाउन एंड सिटी। ओके, सिटी से पहले आपका टाउन बनता है। टाउन थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है बट ऑर्गेनाइज एंड डेवलप्ड होता है। सिटी क्या होती है, लार्ज पॉपुलेशन होता है, ये भी सिविलाइज्ड एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल होती है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो जनरली पीपल जो इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्क। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई सामान को बनाने में, ठीक है। सपोज अगर आपने टी लीव्स है तो टी लीव्स को चाय पत्ती बनाने के लिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लगता है उसको आप कहते हैं, ठीक है। तो लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग यानी कि सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, सर्विस होता है, चाहे वो कॉल सेंटर हो या कोई आपकी इंफॉर्मेशन सेंटर हो या कस्टमर केयर सेंटर हो, जहाँ पे आप बिलिंग की बात करें, बैंक की बात करें, तो यहाँ के लोग इन सारे सर्विसेज में ऐड होते हैं। ओके, सो आप अपने एरिया के आसपास बता सकते हो या मुझे एक कमेंट कर सकते हो कि विलेज कौन कौन से आप, किसको आप विलेज कहोगे, या टाउन्स के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, सिटी एरिया के भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप मुझे। ये तो बात थी आपके सेटलमेंट की। सो क्विक रिविजन ऑफ द सेटलमेंट इज बेसिकली वेयर पीपल सेटल, ओके, where people settle down, and it is of a two type, that is your permanent settlement and your temporary is for time being and permanent is for long period of time. Other further division of your settlement is your rural area and your urban area. There is one sort of definition which is given in the box, just look at this here. Transhumance. What is transhumance? It is a seasonal movement of people who rare animals move in the search of new pastures and change in seasons. तो ये चीज़ जो होती है वो पहाड़ी एरिया में होती है जहाँ पे लोग जो अपने भेड़ बकरियों को पालते हैं, तो ठंडी जब ज़्यादा पड़ती है तो वो यहाँ से उतर के नीचे एरियाज़ में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एनिमल के पास्चर यानी कि जो खाने की चीज़ें वो नहीं मिलेगी, लेकिन ग्राउंड एरिया में ठंडी थोड़ी कम होगी तो यहाँ पे उनको खाने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही सीज़न में चेंज होता है ये फिर से वापस चले जाते हैं। इस टाइप ऑफ मूवमेंट को, इस सीजनल मूवमेंट को आप कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट, ह्यूमेंस मतलब ह्यूमन। सो दिस मूवमेंट इज नोन एज योर transhumance. Okay, now we coming to the next topic of your chapter, that is your transport. Now transport is basically a means by which people and goods move. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां आप एक चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं विद द पोर्ट, मतलब किसी की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जब आप ट्रेवल करते हैं गुड्स या पीपल के साथ, उसको आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट। इन योर अर्ली टाइम ग्रेट डील ऑफ टाइम होता था, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है लोग या तो पैदल चले जाते थे या तो अपने सामान को एनिमल के ऊपर रख करके फिर ट्रैवल करते थे। फिर इन्वेंशन हुआ आपका व्हील का, ठीक है। अर्ली मैन ने व्हील का आविष्कार किया। अब व्हील से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी हो गया बिकॉज द लोड इज नाउ मच मोर लाइटर विद द हेल्प ऑफ द व्हील। देन आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट बहुत हुआ और आज के टाइम पे जो एनिमल हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसमें और टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हुआ।
और पुराने टाइम पे आप बता सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स जो कि यूज़ किए जाते थे एज अ ट्रांसपोर्ट. सो यू हैव योर डोंकी, मोल्स, बुलक्स, कैमल एंड आर कॉमन. अगर आप साउथ अमेरिका में जाएं, वहाँ पे वहाँ माउंटेन रेंजेस है जिसका नाम है एंडीज माउंटेन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंडीज माउंटेन कहाँ है? सो साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है. और इसको आप इलामास आर यूज्ड, जो कि याक की तरह ही होता है. और जैसे याक जो है तिब्बत में यूज़ किए जाते हैं बोझ उठाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे इलामास यूज़ किए जाते थे. Traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route and the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now take only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves times and energy too. So धीरे धीरे जैसे हमारी हर चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ, वैसे ट्रांसपोर्ट में भी डेवलपमेंट हुआ. People invention और aeroplane. Due to this we save our energy and time and fuel with the short period of time. ओके अगर आपको इंडिया से यूरोप जाना है आज के समय पे तो आप 6 से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे. इवन अगर आपको अपने एरिया से लखनऊ जाना है तो आपको मैक्स टू मैक्स एरोप्लेन से 45 मिनट्स लगेंगे. दैट इज अ saving of time with the technology. Now we will study further in this. The first transport is your roadways. So roadway is the best means of transport in any cost of time or in any part of time. So there are basically 4 types of transport, that is your railway, okay, your railway, roadways and your sea route, okay, and your sea route, that is also known as waterways, and your airways. So roadways, railways, waterways and airways. So now we will study this. Here first of all you have the first one is roadways. Roadway is the most commonly used transport in a short distance. Okay, अगर आपको आज भी अगर किसी को दिल्ली या लखनऊ तक जाना है तो आप प्रेफर करते हैं या तो रेलवे या तो रोडवेज, बिकॉज डिस्टेंस इतना कम है कि आप रोडवेज के भी साधन से जा सकते हो. दे कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड. आपने क्लास 6 में ही पढ़ा है व्हाट इज मेटल्ड एंड व्हाट इज अनमेटल्ड. सो मेटल्ड होती है वो रोड जो पक्की होती हैं, अनमेटल्ड वो रोड जो कच्ची होती हैं. द प्लेन have a dense network of roads. Road have also been built in a terrain like desert, forest, even a high mountain. So हमारी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के साथ साथ हमने अपने रोड्स को भी हर जगह सेटल कर दिया है, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो चाहे वो माउंटेनियस एरिया हो. Manali Leh highway in the Himalaya mountain is the one of the highest roadways in the world. So very important, मनाली ले रोडवेज जो है वो आपके हाईएस्ट रोडवे है वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे और अंडरपाथ. और वो बिल्ड हुआ है अंडरपाथ यानी नीचे से खोद करके उसमें रास्ता बनाया गया है जहाँ से लोग आते जाते हैं. सो इसको आप सबवे कहते हैं या तो आप कहते हैं अंडरपाथ. और भी होते हैं फ्लाईओवर. फ्लाईओवर होता है जो ओवर बिल्ड होता है, राइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है. ये बात है आपके रोडवेज की. अब आते हैं हम रेलवेज की बात करें तो रेलवेज इज अ वेरी गुड फॉर अनलोडिंग द हैवी लोड्स इन अ लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट है, ठीक है. सबसे पहले आपकी स्टीम इंजन आई थी, ठीक है. उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हेल्प से हमें डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन मिला, जिसकी वजह से हमें सुपर फास्ट ट्रेन मिली. आज के समय में हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन है. इंडिया रेलवे नेटवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है. इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट है, बहुत ही बड़ा है और एशिया में तो सबसे बड़ा ही है. अंडरस्टूड. दूसरी चीज़ अगर हम आपकी बात करें इसमें तो
आपको मुझे इसमें बताना है कि सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है जो इंडिया में लॉन्च हुई थी 2018 के समय. Okay, so this is all about your railways. I know railway is very easy and very comfortable. Okay, and it take according to the price it is very cheapest. All right. So और इसकी जो growth और development हुई starting from the steam engine to the diesel to the electronic engine, then you have a super fast train. Okay, that is electric train. Now we coming to the next one is your waterways. Okay, you can see the साइबेरियन रेलवेज, कितना बड़ा नेटवर्क है रशिया का. इसको साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं. ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, ठीक है, जो कि ज्वाइन करता है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के वेल्डिवॉस्को, ठीक है, पैसिफिक कोस्ट तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये ज्वाइन करता है. तो आप इसको देख सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल जो है वो 9th-10th क्लास में पढ़ेंगे. जस्ट टू सी दिस कि किस तरीके से एक एंड पॉइंट से दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हो रहा है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ कमिंग टू द वाटरवेज. वाटरवे क्या है, अब इसकी बात करें तो ये भी बहुत ही चीपेस्ट है, ठीक है, और ये अर्ली टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. अब वाटरवे में भी दो तरीके के वाटरवेज होते हैं. एक होता है इनलैंड वाटरवे और एक होता है सी वाटरवे और सी रूट. इनलैंड वाटरवे जो होता है वो बेसिकली विद इन कंट्री होता है, यानी आप जब कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आप इनलैंड वाटरवे यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर रिवर्स बेसिकली. ओके, और सी रूट जब आप बाहर एरिया में जाना है, यानी कि बाहर कंट्रीज़ में आपको जाना होता है तो आप सी रूट यूज़ करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अफ्रीका जाना है तो आप इंडियन ओशन को ट्रैवल करते हुए जाओगे, ठीक है. सो ये एक एग्ज़ाम्पल है. अब अगर हम इनलैंड वाटरवे की बात करें, जहाँ पे आप रिवर में ही ट्रैवल करते हो, रिवर पे ही ट्रैवल करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उत्तर प्रदेश से कोलकाता या ब्रह्मपुत्र या आपको गुवाहाटी जाना है तो आप बेसिकली गंगा रिवर को यूज़ कर सकते हैं. फिर आगे जा कर के आप ब्रह्मपुत्र रिवर को यूज़ कर सकते हैं. सो ये तो हमारे इंडिया की बात हुई. अगर हम नाइल रिवर की बात करें तो नाइल रिवर बाहर अफ्रीका के लिए, ठीक है, ये बेसिक है. ये इनलैंड वाटरवे है जहाँ पे आप विद इन द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कंट्री के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं. सी रूट क्या होता है, जब आप बिटवीन द कंट्रीज ट्रैवल करते हैं. तो मेजर पार्ट क्या क्या है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ पोर्ट सी रूट में. पहला है आपका सिडनी, ठीक है, मुंबई हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, ठीक है, केप टाउन हो गया, डर्बन हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया, लॉस एंजल हो गया. ये सारे पोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट हैं और हमारे इंडिया में इसी रूट को ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है. एंड द अदर कंट्री ऑल्सो फॉलो दिस ओनली. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर अदर way of transport, that is your airways. Airways is the best way of saving your time, and it is very costly also and it is very expensive. जितना ही ये टाइम आपका बचाता है उतना ही इसकी एक्सपेंसेस होती हैं. बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट है और अफेक्टेड बाय अ फॉग एंड स्टॉर्म, ठीक है. इनका एक ही एक ड्रॉबैक है कि ये फॉग और बारिश या थंडर स्टॉर्म की वजह से कभी ना कभी आपकी जो फ्लाइट्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं. दूसरी चीज़ है इसमें आपको हैवी लोड्स ज़्यादा, मतलब अगर आप सामान लेके जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न होता है कि आपको कितने केजी तक का ही बैग लोड कर सकते हैं. ओके, और जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है वो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड द कैरियो. ओके बच्चे, और आप मुझे एक होमवर्क भी बता रही हूँ मैं आपको. आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि 100th, ठीक है, 100वां एयरपोर्ट इंडिया में कहाँ खुला है या कहाँ बन के तैयार हुआ है. यानी 100th
एयरपोर्ट इंडिया के कौन से प्लेस पे बना है, जिसका उद्घाटन भी हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन स्टडी करते हैं इन्हीं चारों एयरपोर्ट्स, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज में। पहली चीज़, एक्सपेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो एयरवेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और रेलवे सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। ट्रैफिक आपको सबसे ज़्यादा रोडवेज में मिलेगी, उसके बाद रेलवेज में, देन योर एयरवेज। कभी प्रॉब्लम हो जाएगी क्लाइमेटिक की वजह से, तो दिस इज़ अ बैरियर। वाटरवे में कभी भी आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्ट। Now coming to communication. Okay, the next topic is communication. Communication is a process of conveying a message to the other. जब आप अपना मैसेज या अपनी बात किसी दूसरे इंसान को कहना चाहते हैं या पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को आप कहते हैं कम्युनिकेशन। ओके, जब आप अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन। ओके, पहले के समय में लोग बताते हैं कि वी यूज टू कम्युनिकेट और कन्वे आवर मैसेज बाय बर्ड्स। ओके, पोस्टल सिस्टम है, उसके बाद आपका पोस्टल सिस्टम में आया प्रिंट मीडिया, ठीक है, फिर आया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले बर्ड्स यानी कि कोई भी पिजन है उसके गले में कुछ भी बांध दिया, जो भी मैसेज आपको देना है, उसके बाद आपका पोस्टल मैसेज सिस्टम आया। पोस्टल सिस्टम में आप लेटर्स लिखते थे या टेलीग्राम लिखते थे। उसके बाद प्रिंट मीडिया में भी अब आप आराम से टाइप करके भेज सकते हो। आज के टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हो और इंटरनेट से आप ईमेल सेंड करते हो। नाउ यू ऑल्सो हैव applications for sending a messages. Okay, so these are all development in the track of your communication. मास मीडिया की बात की जाए तो मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया इज अ कम्युनिकेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू योर न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी। सो मास मीडिया क्या होता है? जब आप अपनी मैसेजेस को हजार लोगों में सेंड करते हो या कम्युनिकेट करते हो विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, दिस इज नोन एज मास मीडिया। मास मतलब ज़्यादा में, मीडिया मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो आप। ठीक है, अब हम बात करें अगर नेक्स्ट चीज़ की तो सैटेलाइट्स की। अब सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन में, कि इसी वजह से आपको जो मैसेजेस हैं या कम्युनिकेशन आपका बहुत जल्दी हो जाता है। आज के समय में आपका है फ़ोन, आपका इंटरनेट, तो आपको तुरंत मैसेज मिलता है, तुरंत अलर्ट मिलता है कि कम्युनिकेट कोई मैसेज कर रहा है या कोई पर्सन जो है आपको मैसेज सेंड कर रहा है, आप तुरंत रिसीव करते हो। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर सैटेलाइट। अब सैटेलाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब सैटेलाइट की वजह से ही आप ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, मतलब कि ऑयल आपकी धरती पे कहाँ है वो आप सैटेलाइट से की मदद से पता कर सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया और वाटर, मिनरल और वेदर का सर्वे आप कर सकते हो, यानी कि फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे डेंस है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड चाहिए आपको वाटर, कहाँ पे कम है, कितना ज़्यादा बढ़ गया है, फ्लड आया है तो कितना आया है, ये सब आप सैटेलाइट की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन पा सकते हो। आज के समय में एक और नई चीज़ें आई हैं जिसको आप कहते हैं वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू अ सेकुलर phone have become very popular today. Yes, this is your talking about your मोबाइल फ़ोन, जिसको आप सेकुलर फ़ोन भी कहते हैं, पर्सनली जो सेल से चलता है। सेकेंडली, ये एक वायरलेस है, आप इसको कहीं भी ले जा करके बात कर सकते हैं। इसमें कोई भी तार सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड में कहीं भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। आप इस वायरलेस कम्युनिकेशन से अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी कंप्लीट कर सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको कोई टिकट बुक करना है या तो आप किसी
फन फेयर में हैं, या आप रेलवे टिकट या आपको एयरपोर्ट टिकट के लिए बुकिंग करनी है तो आप घर बैठे भी कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सैटेलाइट एंड द वायरलेस फोन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. एंड हियर there is a picture which is given. Okay, this is a map of seaport and airport. So I will suggest you to learn the airport which is located in India, that is your Chennai, okay, your Kolkata, your Mumbai, and some basic in the world, that is your in Australia, in Africa, and in your South and North America. Okay, so learn basic and important sea route and airport which is given in this map. All right, so here we come with the end of the chapter. So at the last, I just say that these transport and communication help us to communicate the people in any corner of the world. वर्ल्ड में अगर आप किसी भी कोने में हैं तो आप इस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हेल्प से पहुंच सकते हैं. सो here are the question answers. What are the four means of transport? You all know. What do you understand by the term settlement? I have discussed in the first page only. Which are the activities practiced by the rural people? रूरल पीपल जो गांव में लोग रहते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं. मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे. रेलवे के दो मेरिट्स बताइए. मेरिट मतलब एडवांटेज, ठीक है. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं. वॉट इज मास मीडिया. मास मीडिया क्या है अभी मैंने आपको समझाया है. नाउ कमिंग टू द टिक द करेक्ट आंसर. वॉट इज नॉट अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. ठीक है. विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर से कौन सा रोड बनता है. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड. किसी आइलैंड में पहुंचना है तो आपको सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट क्या होगा. विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. कौन सा ऐसा व्हीकल है जो आपके एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं करेगा. मैच द फॉलोइंग है. इंटरनेट को आपको मैच कराना है. कैनाल रूट्स को मैच कराना है. अर्बन एरिया और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को मैच कराना है. ओके. अब हम बात करते हैं गिव रीज़न. यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आज के समय पे टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग. ओके, जो आपकी जो दुनिया है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, यानी कि धीरे धीरे सिकुड़ रही है. क्यों, कैसे. तो ये आपके कम्युनिकेशन की वजह से. क्योंकि अब आप अगर 200 किलोमीटर भी दूर है किसी से तो आप घर बैठे ही तुरंत बात कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके बगल में ही बैठे हैं. आज के टाइम पे आपका वीडियो कॉल हो गया है, जिससे अगर आप बहुत दूर हैं, ओके, सपोज आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तब भी आप एक दूसरे को देख के बात कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर shrinking of the world with the help of the communication and the satellite. Okay class, so this is all about your chapter and the discussion of the question answer. Written part I will provide a PDF file. Do complete your chapter, learn your chapter. Okay class, thank you, have a very good day.